See what is the question? Factorize. Okay, in this question it is given a raised to 4 minus b raised to 4. So here in this question, a raised to 4 minus b raised to 4. So here we can write like a square bracket square minus b square and bracket square. So we can utilize this formula a square minus b square. So one time we have to add, one time we have to add, one time we have to subtract. Okay, again here we can utilize the same formula. So here a plus b and a minus b, and this term will be as it is, a square plus b square. Okay, so this is your final answer, right? Now same as we can solve the second one. Here also p square is the p raised to 4 is there, na? So p square bracket square, and 9 nines are 81. 9 nines are 81. First of all, we will bifurcate. 9 nines are 81. Again, we can say 3 threes are 9. 3 threes are 9. Okay. So we can say 3 square and bracket square. Okay. So it is 3 raised to 4. It is 3 raised to 4. Am I right? So here we can say Yes. p square plus 3 square into another bracket p square minus 3 square, right? So 3 square means it is 9. So p square plus 9 first. Now here again we can say p plus 3 and here p minus 3. Understand? So this is your expansion. Understand how to solve these questions? Same as remaining questions also you can solve. Fifth example, let us take fifth example. Fifth example, a raised to 4, na it is a raised to 4 minus 2a square b square plus b square plus b square plus and b raised to b raised to 4. 4. So here we can rewrite this statement like this: a square and bracket square minus 2a square b square plus b square and bracket square. So we can compare this with the formula a square minus twice ab plus b square. Okay, so here we can say a minus b bracket square. So here we can say this a will be a square, this a will be a square, and this b will be b square. So a square minus b square and bracket square by comparing this with this formula. Am I right? So here we can say now here we can say again, here we can use the formula. Which formula we can use? See here, a square minus b square 2 times we will write. Okay, here we can utilize the formula a plus b, again a minus b. Here also we can utilize same formula a plus b and a minus b. So here simply what we can say, a plus b bracket square and a minus b bracket square. So in this way we can do factorization, right? Understand? You understand what आपको? Yes, sir. हाँ. Okay, question 5. Question 5 क्या देखो, p square plus 6p plus 8. Question 5,
First one, p square plus 6p plus 8, right? So here, Yes, first of sir. all, take the factors. 4 2s are 8, and 4 plus 2, 6. 6. Okay, so here I will write like this. P square, we first of all write down the formula. What is the formula? X square plus a plus b into x plus a into b. This is the formula. So we can say that x plus a and x plus b. This is the formula. So by using this formula, rearrange this p square plus 6p plus 8 in such a way that p square plus 6p, how we can write? Here we can say 4 plus 2. 4 plus 2 p plus 4 multiply by 2. 2. आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर देखो, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पर a आपका हो गया ये, दिस इज योर b. तो सिंपली आप बोल सकते हो p प्लस 4 और यहाँ पर p प्लस 2. तो यहाँ पर आप जब लिखोगे ऐसा, तो यहाँ पर बाय कंपेयरिंग दिस with the identity, here you can write down by comparing above expression with the identity, and then you can write down this answer. Understand? तो आपको ये जो आइडेंटिटी है, ये लिखने के लिए भी आपको वहां पर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही है, आप यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व दिस, डू द फैक्टराइजेशन. तो आइडेंटिटीज आपको लिखना है. अंडरस्टैंड? आ रहा है समझ में? Yes, sir. So remaining examples, you just do practice. 2 examples, both are same. Now division. One by one example, we will see how to divide this. Division. Now division of a polynomial. In this concept, how we are doing division of numbers? See, first of all, division and multiplication, both operation are interrelated. दोनों का रिलेशन है एक दूसरे के साथ में. जैसे कि हमने 7 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, 56 आ रहा है, बराबर है. 56 को अगर आपने 8 से डिवाइड किया, 56 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या आ रहा है आपका आंसर? 7 आएगा आपका आंसर, 7. राइट ना? या फिर आप 56 को 7 से डिवाइड करोगे, तो क्या आ रहा है आपका आंसर? 8 आएगा, 8. बराबर है ना? मतलब यहाँ पर देखो, ये एक तरह का इक्वेशन है. जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा था, इक्वेशन कौन सा होता है? जहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है, वो होता है इक्वेशन. तो यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, जब वो वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो क्या होती है? वो डिवाइड हो जाती है, बराबर है ना? Divide. हाँ, तो वही रूल आपको यूज करना है. दोनों ही इंटर रिलेटेड है, बराबर है. यहाँ पर देखो, अभी आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दिखेगा, ये देखो 2x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर. ये देखो, ये इक्वेशन यहाँ पर देखो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है. मतलब यहाँ पर देखो, कांस्टेंट वैल्यू विल मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट एंड वेरिएबल विल मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल. Variable. आ रहा समझ में? ये देखो, वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर वेरिएबल से. यहाँ पर देखो 2 3 6, and how we are multiplying variables, powers we will add, x raised to 1, x raised to 2. Same variable is there, so we can add their powers. 2 plus 1 3, so 6x cube. 6x cube. Now how we can do division? If suppose 6x cube is there, if I will divide with this 2x, then how to divide? Simply you know how to divide numerical values. 6 divided by 2, you know that 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now here x cube divided by x, so you know the rules. Exponents rule, you know that x cube
divided by x raised to 1. So simply what you can do, subtraction of their powers. You can subtract their powers. So x raised to, we can say x square it is. By using exponent powers, we can do division of this. परेशान हो रहा है आपको? या फिर एक दूसरी मेथड इस तरह से भी हो सकती है कि जैसे कि 6 के फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं, 2 3 जा 6 और x कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. और यहाँ पर देखो 2x 2 multiplied by x 2 get cancel, x cancel. So what will remain here, 3x square. Understand? तो इस तरह से डिवीजन हो सकता है. आ रहा है समझ में? डिवाइड मतलब क्या है, यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स है ना, डिवीजन में आपको कॉमन फैक्टर्स निगलेक्ट करने होते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं. डिवीजन मतलब कुछ एकदम डिफिकल्ट वर्क होता है ऐसा कुछ नहीं. हमें ऐसा लगता है ना कि डिवीजन में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है. डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है. डिवीजन में सिर्फ आपको कॉमन फैक्टर्स निगलेक्ट करने होते हैं. जैसे कि अगर आपने 56 मल्टीप्लाई बाय 8 भी लिया तो 56 के फैक्टर्स 7 8 जा 56 बराबर है ना. 56 डिवाइडेड बाय 7 है. 56 के फैक्टर्स क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 7. 7 गेट कैंसिल. व्हाट इज योर आंसर, 8. अंडरस्टैंड हो रहा है? कॉमन फैक्टर्स आपको निगलेक्ट करने Yes, पड़ते हैं. sir. डिवीजन में यही होता है. आपको यहाँ पर यही करना है. आपको यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स निकालना है और कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करना है. जैसे कि यहाँ पर देखो ये एग्जांपल दिया है यहाँ पर 5x इंटू ब्रैकेट x प्लस 4. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x स्क्वायर. ओके एंड 5x मल्टीप्लाई बाय 4 5 4 जा 20. सो 20x. अभी यहाँ पर अगर आपको ये एक एक्सप्रेशन दे दिया, ये देखो 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय 5x. अगर आपको ये दिया जाए तो आप सोचोगे कि अरे ये डिफिकल्ट काम हो रहा है, कैसे करोगे यार. तो सिंपल है. यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो सिंपली यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मेन पर्पस ये होगा कि कॉमन क्या निकलेगा, ऊपर के ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकलेगा. यहाँ पर देखो 5 कॉमन निकलेगा, तो पहले मैंने 5 कॉमन निकाला. यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, मतलब x भी कॉमन निकल सकता है. तो यहाँ पर देखो 5x स्क्वायर को मैंने 5x से डिवाइड किया, मतलब यहाँ पर सिर्फ x बचेगा. बराबर ना. 5x मैंने कॉमन निकाल लिया, 20 में से मैंने 5 कॉमन निकाला तो 5 4 जा 20. तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4 और x तो ऑलरेडी कॉमन निकाल लिया है मैंने. तो यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन को आपको इस तरह से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं एंड डिवाइडेड बाय 5x. तो 5x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 4. मतलब डिवीजन बहुत इजी है. X plus 4. हाँ, डिवीजन करते वक्त आपको सिंपली क्या करना है, जो ऊपर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके आपको फैक्टराइजेशन करना है. और उसका फैक्टराइजेशन कैसे करना है हमने ऑलरेडी वहां पर देखा है, एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2 में. ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखते हैं. Let us see quickly that examples. Okay, one by one I will take examples. Suppose exercise 14.3 question number 1. Okay, see question number 1. 28x raised to 4 divided by 56x. Now, is there relation between 28 and 56? Tell me. Tell me. Is there a relation? 28 2 za. Yes, sir. 28 to the 56. So 28 get cancelled. X get cancelled. Look here, x raised to 4. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, है ना. तो यहाँ पर क्या बचेगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय 2. so this is your answer. अंडरस्टैंड हुआ. सेकंड एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल -36 y क्यूब डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर. 9 4 जा 36. Here y square is there, so I will write like this, y square multiplied by y, है ना. y का पावर कितना है, 3 है. तो यहाँ पर 2 + 1
इस फॉर्मेट में, डाउन साइड में देखो 9 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर. ओके, so here this 9 get cancelled, y square get cancelled, minus sign will as it is. Here 4y, this is your answer, minus 4y. फिफ्थ एग्जांपल है तो हमें फिफ्थ एग्जांपल, बाकी सब एग्जांपल सिंपल ही है. फोर्थ भी सिंपल है. फिफ्थ एग्जांपल 12 a raised to 8 b raised to 8 divided by minus 6 a raised to 6 b raised to 4. ठीक है, अभी ये देखो ये एग्जांपल 12 a raised to 8 b raised to 8 divided by minus 6 a raised to 6 b raised to 4. First of all, what I will do, minus sign I will take in between, means there will be no issue afterwards. Minus sign I will take in between, and then here 6 2s are 12, so I will write like this, 6 2s are 12. Here a 6 power of a raised to 6 it is there, so I will write, I will bifurcate this power of a raised to 8, that a raised to 6 multiply by a square. Again here b raised to 4 is there, so I will bifurcate b raised to 4 multiply by b square. Understand? Downside 6 multiply by a raised to 6 multiply by b raised to 4. 6 cancel, a raised to 6 cancel, b raised to 4 cancel. So minus sign as it is, this 2 multiply by a square multiply by b square. This is your answer. Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा. सर ऊपर वाले बाइफर्केशन में हाँ. लास्ट b raised to 4 आना चाहिए, राइट? क्या बोला आपने? सर यहाँ पर b raised to 4 आना चाहिए, राइट? कहाँ पर? हाँ यस, यहाँ पर 4 है ना. यस. बराबर है. यहाँ पर एक बाकी रह गया आपका, राइट. यहाँ पर वापस एक बार b रेस टू क्या आएगा, 6 ना, तो यहाँ पर 7 एंड मतलब वापस एक बार 2 आएगा, b रेस टू 4, सिंपली b रेस टू 4 करेंगे यहाँ पर. बराबर है, b रेस टू 4. यस. So b raised to 4 will be here. B raised to 4. Right. Very good. Okay. Next example. Question number 2. ये क्वेश्चन तो आपको अंडरस्टैंड हो गया ना अभी कैसे करना है आपको? Yes, sir. ठीक है. अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, ये एग्जांपल से. यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x. यहाँ पर देखो फर्स्ट थिंग, यहाँ पर ऊपर का जो आपका बायनोमियल है उसमें से क्या कॉमन निकल सकता है ना, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? बराबर है सर 2 into 3 6. हाँ 6 यहाँ पर है ना, पर यहाँ पर है क्या? नो. यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x कॉमन निकलेगा. क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पर? x. Only x will be common here, and here we can say 5x minus 6. 5x minus 6. So first of all, here if you want to take common 3, then we have to divide here by 3. Okay, यहाँ पर अगर आपको 3x कॉमन निकालना है, जैसे कि यहाँ पर 6 है, आपको 3 कॉमन निकालना है, तो यहाँ पर अगर आपने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर देखो, मैं आपको बाइफरकेट करके दिखाता हूँ. ये देखो 5 राइट, 5x स्क्वायर, 5x मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय x.
और यहाँ पर 2 3 6 इंटू एक्स बराबर है। यहाँ पर डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर देखो इंडिविजुअली मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। ये देखो 5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 3x। 3x। ठीक है, यहाँ पर देखो x x कैंसिल, यहाँ पर कुछ होगा क्या कैंसिल? अभी नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा 5/3x। ठीक है, यहाँ पर 3 x कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा -2। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो इस तरह से ये डिवाइड होगा। मतलब आपको क्या करना है, सेपरेटली पावर्स जो है ना, मतलब यहाँ पर जैसे कि कोई एग्जांपल है, यहाँ पर सपोज 8 - 3 डिवाइडेड बाय 2 सपोज, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 8/2 - 3/2 कर सकते हैं ना इसको। या फिर यहाँ पर आपका होगा एग्जांपल 8/2 - 3/2। पावर्स जो डिनोमिनेटर में है, बेस जो डिनोमिनेटर में है वो सेम है, तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे उसको डिवाइड भी कर सकते हैं अलग अलग। आया समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल अंडरस्टैंड हुआ आपको कैसे करना है ये? यस सर। सेकंड एग्जांपल, यहाँ पर देखो सेकंड एग्जांपल में आपको यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है आपको? फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सपोज हियर इन दिस एग्जांपल y⁻8 - 4 y⁻6 plus 5 y⁻4. So everywhere I just found y⁻4 y⁻4 y⁻4, so I will rearrange it. 3 y⁻4 into y⁻4 here minus 4 y⁻4 y⁻2, 4 plus 2 6, right? Then here 5 y⁻4 as it is divided by y⁻4, first step. Then second step, y⁻4 I will take common from everyone, y⁻4. So what will remain here inside the bracket? 3 y⁻4 minus 4 y square plus 5, only 5. यहाँ पर देखो सिंपल है, हमने ये कॉमन निकाला, एक एक वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय y⁻4, ये देखो y⁻4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या आएगा आपका आंसर? 3 y⁻4 minus 4 y square plus 5। इस तरह से आपको कॉमन निकालना है, बस ऊपर का जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसमें से कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। और कौन सा कॉमन फैक्टर निकालना है? जो डाउन साइड में गिवन है ना, उसके फॉर्मेट में कॉमन निकालना है। आया समझ में? अगेन टेल मी विच एग्जांपल, टेल मी विच एग्जांपल। So can you solve the fifth one? 6 1, you have 5 examples. Fifth one. Fifth one. Fifth one, okay. यहाँ पर देखो फिफ्थ एग्जांपल क्या है? 5 क्यूब q⁻6 minus p⁻6 q⁻3 divided by p cube q cube. Now look here, p cube and q cube it is there. So p cube into q⁻3 into q⁻3, again 3 plus 3 4 है ना, 3 plus 3 4 होता है। तो इसके फॉर्मेट में आपको इसका फैक्टराइजेशन करना है, इसके फॉर्मेट में। आया समझ में? माइनस p⁻3 into p⁻3 again 3 plus 3 6
then q raised to 3 as it is divided by p raised to 3 q raised to 3. Now look, take common from our side, p raised to 3 q raised to 3, take common. So what will remain here? Q raised to 3, because we have taken this values common. So what remain here? P cube q cube we have taken common. So what remain? P cube divided by p cube q cube. These values get cancelled. So q cube minus p cube, it is your answer. Understand? आया समझ में आपको? Yes, sir. जो डाउन साइड में आपका एक्सप्रेशन है ना, उसके फॉर्मेट में आपको कॉमन निकालना है. आया समझ में? अगर आप इस एग्जांपल को इस तरह से करोगे ना, कि जैसे कि यहाँ पर p रेस टू 3, तो p मल्टीप्लाई बाय p देन q मल्टीप्लाई बाय, तो कंफ्यूज ज्यादा हो जाएगी आप. इस एग्जांपल में आप राइटिंग में ही कंफ्यूज हो जाओगे. आया समझ में आपको? Yes, sir. हाँ, तो आपको क्या करना है, जो डाउन साइड में आपका एक्सप्रेशन है उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कॉमन फैक्टर निकालना है. जैसे कि यहाँ पर q रेस टू 6 है ऊपर, यहाँ पर डाउन साइड में q रेस टू 3 है, तो इसको बाइफरकेट करो. 6 में से 3 गया, आता है आपका 3. सो 3 + 3 होता है 6, है ना. इस तरह से उसका बाइफरकेट करो, तब यहाँ पर आपको इजी हो जाएगा, कॉमन निकालने के लिए भी इजी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाउ 3rd ना. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है. देखो फर्स्ट एग्जांपल है आपका 10x - 25 डिवाइडेड बाय 5. 5 है डाउन साइड में, तो 5 कॉमन निकालो. 5 कॉमन निकालो, या फिर 5 2 * 10, 5 2 * 10 माइनस 5 5 * 25, डाउन साइड में 5. तो 5 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा यहाँ पर? 2x - 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 कैंसिल. So your answer 2x - 5. Next example. यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10x - 25 है, डाउन साइड में 2x - 5 है. यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को डिवाइड करो 2 से, तो हो जाएगा 5, मतलब 5 कॉमन निकलेगा, है ना. 5 कॉमन निकाला देखो आपने, यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय 5. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर हम कॉमन ना निकालते हुए डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हैं ना? वो आपके लिए जो है ना, वो एग्जांपल्स आपको 9th स्टैंडर्ड में, वो विदाउट कॉमन निकाल के आपको जो डिवाइड करना है, वो आपको 9th स्टैंडर्ड में वो मेथड्स. अभी आपको सिंपल वे में इसको सॉल्व करो, एकदम सिंपल वे में. जैसे यहाँ पर देखो, अगर आपको डिवाइड करना है ना, 10x और 2x को डिवाइड करो फर्स्ट. देखो 2 1 * 2, 2 5 * 10, मतलब 5 कॉमन निकलना है यहाँ पर. और यहाँ पर x, 5x कॉमन निकल सकता है, 5 कॉमन निकलेगा. ये देखो सिंपल है. यहाँ पर देखो ना, आप 10x को आप किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो इस एक्सप्रेशन में. जैसे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2x, एम आई राइट? 5 2 * 10 होता है कि नहीं. तो ऊपर Yes, देखो और नीचे का टर्म देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये देखो ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म देखो, यहाँ पर कैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब हर एक टर्म में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? डाउन साइड में भी 2x है, यहाँ पर भी -5 है. दिख रहा है आपको? 2x कॉमन निकाला आपने, 5 5 कॉमन निकाला आपने. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन है? 5 कॉमन है. तो 5 आपने कॉमन निकाला, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? 2x - 5, राइट है. डाउन साइड में देखो 2x - 5, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? 5 इज द आंसर. आया समझ में आपको कैसे करना है? Yes, sir. बस डाउन साइड का जो वेरिएबल्स या फिर जो भी टर्म्स होगा उसको देखना है आपको,
और एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये देखो ये एग्जांपल 10y 6y प्लस 21, डाउन साइड में है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2y प्लस 7, बराबर है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 3y है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं, यहाँ पर देखो ब्रैकेट में 2y, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है, राइट। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, देखो डाउन साइड की यहाँ पर इसको देखना है और इसको देखना है आपको अप साइड में, 7 और 3, 3 7 जा 21। ओके, यहाँ पर देखो डाउन साइड में है यहाँ पर 5 इंटू ब्रैकेट 2y प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको 10 कैसे लिख सकते हो आप, 10 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पर ये y मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आपने 3 कॉमन निकाला इस ब्रैकेट में से, 3 कॉमन निकाल लिया आपने, क्या बचेगा 2y प्लस 7, डाउन साइड में देखो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 7, 5 5 गेट कैंसल, 2y प्लस 7 2y प्लस 7 कैंसल, तो क्या बचेगा 3 2 जा 6 एंड दिस y 6y। आया समझ में ये एग्जांपल? Yes, sir. हाँ, मतलब बाकी के एग्जांपल भी सेम उसी तरह से ही, या फिर और कुछ डिफिकल्टी है तो बताओ कौन सा एग्जांपल सॉल्व करना है। फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ या फोर्थ? फोर्थ आप ट्राई करो, चलो फिफ्थ वन में एक्सप्लेन करके देता हूँ। यहाँ पर देखो 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 A माइनस 4 B माइनस 6। एक्सप्रेशन बड़ा दिखाना आपको ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है ना, पर आपको इसको सॉल्व करना है सिंपल वे में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है A माइनस 4, यहाँ पर है A माइनस 12, 3 4 जा 12 होता है, मतलब यहाँ पर 3 कॉमन निकल सकता है। यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट में यहाँ पर 3 कॉमन निकल सकता है, 3A माइनस 3 4 जा 12, इस टर्म को मैंने इस तरह से लिखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5B माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 जा 30। आए समझ में आपको? यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये A माइनस 4 B माइनस 6, और यहाँ पर देखो 96 है, 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा क्या होता है 24, 6 4 जा 24, 9 4 जा 36, 36 37 38 नहीं होता है। यहाँ पर इस तरह से फैक्टर्स निकल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 12, 12 8 जा एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, वापस यहाँ पर 8 1 जा 8 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 8 3 जा 24, मतलब 96 3 जा अगर किया, नो it is a square of 12 ना, 144, otherwise we will do factors, 96 के factors करो। एंड 144 के फैक्टर्स करो, 144 के फैक्टर्स।
So here 1, 2, 3, 4. 2 4s will cancel. Suppose 1, 2, 3, 4, and 1 3 will cancel here. Here also 1 3 will cancel. So what we can say, 96 3s are. No, here it is 2 na. Here 2 and here 3. Upside 2 will remain and downside 3 will remain. $24. Okay, let it be. So factors, how we can do like this. Okay, like this only. 12 multiplied by 8. Here 12 multiplied by 8 into here A, B, C. Downside 12 multiplied by 12, suppose. Here we can take common. This 3 will common. A minus 4. Here 5 we will take common. So here B minus 6. डाउनसाइड में देखो यहाँ पर a minus 4, यहाँ पर b minus 6 कॉमन निकला. यहाँ पर आपका ABC as it is, और यहाँ पर 12 multiplied by 12. Okay. So 12 get cancelled. Here we can say 4 3s are 4 2s are 8 and 4 3s are 12. Means 2 will remain above side. 2, this A minus 4, B minus 6 cancel. So here it is 2 ABC into 3. 3 again here cancel. 3 will again cancel. So here 2 ABC is the answer.